prepare for the civil services examination, and whatever queries you have about the preparation, you can ask. Good afternoon, everyone. Thank you for the introduction, sir, and for hosting us. So, as sir has mentioned, this was my second attempt, and I've got rank 51. So, talking about the preparation regime, I think to begin with, apart from knowing what to read in the examination, it is also important to know what not to read, because we have a limited time frame, and we also have human capabilities which are limited. You cannot learn all the constitution articles, and you cannot read every other magazines that comes your way. You have limited hours, and you have to optimize that. And this was also possibly one of the reasons why I could not crack in my first go, wherein I had very limited time and I was wanting to read everything and anything that came my way. So for anyone who is starting right now, who is starting afresh, you have a blank slate. So make sure you don't pile garbage in there. Make sure you read what is desired. Make sure you stick to one newspaper and you read it daily. Make sure that you are thorough with NCRTs and whatever the basic textbooks that are there. And of course there is whatever sir teaches you in the class. Now we also have the Buzz app. You get daily bites about the current affairs. So they keep you on your toes, and they also keep you abreast with the latest current affairs. Something which in the recent exam has become the very crux of the examination. If you see the 2016 prelims in which I had appeared, it was outrightly current affairs based. So thankfully I had developed a knack for reading current affairs more than reading the standard textbooks. So it did work for me, although this is something I would not recommend, that you completely overlook the standard textbooks. But reading newspapers, reading magazines will definitely help you in each and every aspect of the exam, right from the prelims up to the interview stage. In fact, by the time you graduate to the interview stage, you'll be reading as many as 4 newspapers. So, I'll just very briefly talk about how should we go about answer writing, and how should we approach, what mindset should we adhere to when we are taking this examination. In terms of answer writing, I think, of course, it is important to have good content. It is important that you have read your books thoroughly, and of course, it's equally important to revise them. That brings me again back to the point that it does not matter how many books you have read, but how well you have read. Okay. So I think, as Bruce Lee would have said, I'm not scared of someone who knows 1,000 kicks, but I'm scared of someone who has practiced one kick 1,000 times. So whatever you have read, make sure you know it thoroughly. I remember by the time I had appeared for my mains examination, I had revised Lakshmikant 13 times. So this was precisely because it was a weak area. I could not remember some of the minute details. What is the electoral college for the presidential elections? Those are very finer details. So it required extensive revision on my part. Apart from that, I think answer writing and mock tests really help. If you have a look at the previous year's paper, you will get an understanding of the type of questions that are asked. I mean, initially when I started off, it would take me good 50 seconds to actually read the questions, because they were considerably lengthy. So I think, and I believe I'm not an outlier, and I'm sure when you start off, it does happen with most of us. But over the time, when you will be reading questions, when you will be writing answers, you'll understand that you have actually developed a flair for it, and you'll do really good at it. So in terms of answer writing, I think it is very important that you appear for mock tests. You have a look at previous year's paper, and there are largely 2 important components of answer writing. First being the content. Of course, you cannot pull a bluff. There are examiners who are far well learned than you, and pulling a bluff might, actually be very damaging. And secondly, of course, is presentation. So, I also was in a dilemma whether I should write in bullet points or should I write in small paragraphs. Should I use blue-black pen while writing or not? So, it all varies on the question that's being asked.
if you're being asked a question on, let us say, what are the features of AstroSat, or what are the milestones achieved by ISRO in the last decade or so, then you can easily, write in points. There has been a weather satellite, a space observatory, blah, blah, blah. Clear-cut points, highlight whatever is important, and you're good to go. But let us say if you're asked a rather tricky and perhaps a question which has a political bent. So let us say in GS paper 2 we were asked this question, that what are the implications of Article 61 on the administration of the national capital of Delhi? How does the relations between the Lieutenant Governor and the Chief Minister translate over the time? Of course, here writing in points would not be the best bet. You cannot write, and you cannot get into name calling about so and so minister, etc. So here perhaps a better bet would be you first elaborate what Article 61 deals with, how the NCT of Delhi stands as a special case, and then maybe you can quote some of the recent happenings. So this again underscores the importance of current affairs. If you are able to substantiate your viewpoint with current affairs, good marks are bound to come. And this is something I say out of my performance in the mock test series. And in sociology also, whenever I would write answers, I would make sure that I give examples from current happenings. When we are talking about social mobility, which is being ensued by digital mediums, we can talk about how Digital India has curbed corruption and XYZ things. So current affairs forms the crux. Answer writing is not only about knowing, it is also about how well you happen to represent it on the paper. And a very cliched statement rather, that if you make the task of the examiner easy, you will be rewarded aptly. So, and that really helps. And previous year's papers are a good guiding line. In fact, in GS paper 1 2016, we had a replica exactly from 2013 paper about women and their role in the India's struggle for freedom. It was a ditto question, and those questions are like a bonus point for someone who is thorough with previous at least half a decade question papers. So I think I would strongly recommend good revision, sticking to a limited textbook list, not getting swayed away by what people have got to say. Sir cracked it in first attempt, whereas I somehow had this mental block that it takes at least a year to understand what the paper is all about. Another year you reach the main stage, and then finally in the third attempt you actually make it to the list. But that is again, those are some really hazardous rumors you might ever come across, and it's best that they are kept at bay. And do not buy such things. Stay positive. And that brings me to the last aspect perhaps that I'll be talking about, is what mindset should you be approaching this exam? So I tell you, I'll be very honest that I do not consider this exam as the mother of all examination as it is touted to be. I would rather rate JEE and CAT, and I've failed in both the examination by the way. I could not make it to IIT JEE, I could not make it to the 99 percentile elite club of IIMs, but not that I complain, because I believe I'm somewhere safer now. So I somehow felt those exams were more rigorous in terms of their content. Here anyone can, not anyone, but perhaps anyone with a sound knowledge can write that what impact globalization has on women. But you cannot go and perhaps calculate tension in a pulley if you have not read H.C. Verma or something. And that's perhaps a nightmare for me as well. So it is not a very content-intensive or rigorous exam. The fact that makes it very tough is the element of uncertainty and perhaps the time that it takes. Talking of uncertainty, even the very day my results came, I was reading art and culture because I was not sure whether I'll make it to the list or not, and even if I do, whether I'll make it to the IAS ranking or not. But I think thankfully it did work out. But the level of uncertainty that this exam brings is what makes it difficult. And of course, the second part is the timeline. You start, let's say, from January, your prelims are in June. Now, of course, they have fast-tracked it. Back when I appeared, it was in August.
and then it stretches as beyond as March. I had my interview in the fag end of March, so it's a good a year and a half preparation regime. You need to be patient, you need to be positive, and I think one mistake that I did was do not get anxious about results. Everything has a silver lining, okay, and whatever you'll get will be a complete result of whatever hard work, whatever devotion you might have put in. So do not be anxious about results. It is okay. I mean, it's perfectly fine that you're not performing initially well in your test series. That happens. I would get a score as low as 71 in prelims when I started, but thankfully I ended up with a 136 in my actual exam. So it will happen over time. Be patient. Do not be anxious about the results. And I think one thing that I tell you from Mayan and I think Sir would agree as well, that hard work never goes unrewarded. Please be hardworking and leave the rest. All the very best for your preparation. Then tell them something about prelims, because generally students are very anxious about prelims. How many revisions are required for the prelims so that they can get to know about the standard for the preparation? I think the anxiety with prelims is pretty common. It's not that you stand as a case in point. Even in my first attempt, I could not say through prelims itself. So I think it was very, very difficult for me as well. So for prelims, I think I would advise that you keep at least 2 months, based on my personal experience, at least for revision. You appear, you attend full-length tests, write them in real exam-like conditions, 2 hours at a stretch. And one thing that I have realized, as an experience from writing previous mock tests is, try and attempt more, buy in your intuition, because if you have read something, it is not, see, even the toppers there do not know more than 50 questions sure shot. The point is they have the guts, they have the confidence to take, some educated guesses. And this is perhaps a less prepared mind is not ready for. If you've not read polity, if you are not thorough with your syllabus, you perhaps think twice before taking a guess. And if you don't take an educated guess and if you just attempt 58 or let's say 60 odd questions, your chances are slim, because there are some ambiguous questions posed by UPSC. So they happen to get you in the danger. And in 2016 the cutoff was as high as 116, which I believe in the recent years has been the highest. So attempting let's say 60 or some of those questions, however, that is largely subject to the difficulty level, but do not be afraid to take educated guesses. You there are as prepared as anyone else. So take intuitive guesses, appear for a lot of mocks and revise. Revise extensively. Do not revise from a plethora of things. Do not stretch yourself too thin. Whatever standard textbook you have, whatever class notes will give you, and whatever current affairs you have, they suffice. It is not that rigorous. And the level of knowledge that perhaps there is required is mediocre. Polity from Lakshmikant suffices. No need to delve into D.B. Basu or Subhash Kassi and whatever books are. So I think that should. Anything more you want to know? What were your focus areas for prelims? Which thing you weighted the most and which were the least weighted subjects? Sure. So I think in that case I've been slightly lucky, because current affairs was something I was very strong at, and that was something out of interest. I would read a lot of newspapers. Luckily the paper was very skewed. We had some 72 questions straight from current affairs. But I think if you ask me a non-specific case, I would suggest that high-peg, history, polity, economics and geography are areas which you can actually predict what is going to be asked. And to know is to predict, and to predict is to control. So if you know something, you'll be able to predict. To predict it, you'll be able to control your very selection in the examination. So I think high-peg is what students should focus, apart from, of course, current affairs. Ashwini B. Komalalvi from Chandigarh University. I should start from preparation from now. My 4 years are left.
5 year now I'm doing. First year completed. Is it okay for me? The right time for preparation is asking. What's the right time for preparation? I think Is it you during have the some- graduation or after the graduation? That's a really good luxury of time that you have. So I think I would suggest you to keep a tab on, try to develop the habit of reading newspapers and try to complete your NCRTs. But at the same time, please do not compromise on your college grades. They are important. I think I should spend time on weekend classes. I think if you're able to strike a balance between your college curriculum and this, it's fair enough. Develop a habit to read. Okay. Thank you. Like ma'am have talked about that the civil services examination is not tough. Is it not the toughest of the examination when it comes to the content of this examination? Because you have the IIT, you have the JEE examination, and you have the AIIMS. These are some of the examination, and also the CAT examination. These exams, they are actually more tough in comparison to the civil services examination. Because the type of the content that you need to prepare for this examination, it is much more tougher in comparison to civil services. Civil services is more about the general awareness. They just want a civil servant to have a general awareness about the society, because at the end of the day a civil servant is expected to serve in the society. But that general awareness that you need to acquire, it can come only if you will work on your basics. Your reading skills should be good, and your understanding skill also should be good, and then your thought development, and lastly the answer writing skill. These are some of the skills that you basically require in order to prepare for this examination. Now for more, Bhavesal will be talking about life in civil services, because he has already spent about a year or more than that in the civil services, so we'll be talking about that. Very good afternoon to all. I have discussed in detail about the examination side of it, so I'll discuss about the life in civil service. कि भाई examination clear करने के बाद क्या प्राप्त होता है आपको? So I am 2015 batch. I belong to Bihar cadre, and I did 1 year of my posting in Bhagalpur district, Bihar. So अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई पिछले एक महीने में या एक हफ्ते में 5 बड़ी खबरें आप बताएं जो अखबार में आपने पढ़ी हो या टीवी में देखा हो, then I'll say कि how do you fit in as a civil servant? कोई भी 5 बड़ी खबरें पिछले एक हफ्ते या एक महीने में आपने अखबार में पढ़ी? सिक्किम और इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट, सिक्किम इंडिया वाला हो गया, दूसरा अमरनाथ अटैक, G20 मालाबार एक्टिविटीज, मालाबार एक्टिविटी, इसमें 2 और ऐड कर देते हैं. एक राजस्थान में वो हुआ था एक गैंगस्टर का इनकाउंटर हुआ था, है ना, उसमें पुलिस के ऊपर फिर लाठीचार्ज वगैरह वगैरह हुआ. और एक जो चीजें अखबार में हाईलाइट नहीं होती वो है नॉर्थ ईस्ट में जो फ्लड आया, दैट हैज लेड टू अ मैसिव कैजुअलिटी ऑफ 76 पीपल. तो अगर आप, और एक सबसे बड़ा जो GST वाला आपको जो पिछले 1 जुलाई, तो अगर आप ये 5 न्यूज लें तो एज ए सिविल सर्वेंट यू फिट है. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, जो मेरा दिल के करीब टॉपिक है वो है फ्लड. ठीक है, तो वी नो कि आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ईस्टर्न इंडिया इज कम्प्लीटली अंडर फ्लड फॉर दिस मानसून सीजन. तो आप स्टेट्स लाइक ईस्टर्न यूपी, बिहार, थोड़ा बहुत झारखंड, असम ले लें या बाकी और जो अरुणाचल प्रदेश है, तो वो पूरा का पूरा सबमर्ज हो जाता है ना. हम लोग अखबार में पढ़ते हैं तो यहाँ चंडीगढ़ में या दिल्ली में बैठे तो बस सोच सकते हैं कि भाई मतलब हाउ डू वी टैकल सच सिचुएशन. इफ यू कम इनटू IAS, आप हो उसके पूरे मतलब भाग्य विधाता उस समय, कि यू एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, आपके अंडर है कि आप कैसे उस समय उसको टैकल करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल आई वाज पोस्टेड इन भागलपुर, तो लास्ट ईयर भागलपुर हैड द वर्स्ट फ्लड एवर इन इट्स इंटायर हिस्ट्री. ठीक है, तो आप ऑफिस में बैठे हो और आपको पता चला कि पूरा का पूरा गाँव डूब गया. ठीक है, तो दिस इज द ओनली सर्विस अंडर विच आप कुछ मतलब कर सकते हो. बाकी लोग तो दिल्ली से बैठ के एडवाइस दे सकते हैं ना, मीडिया वाले कमेंट्री कर सकते हैं. ठीक है, आप जो रियल एक्शन करते हो तो आप क्या कर सकते हो. तो जैसे हम लोग थे वहां पे, तो हम लोग 105 रिलीफ कैंप एक साथ चलाते थे, जहाँ पे डेली 2000 लोगों को खाना खिलाते थे. ठीक है, कहीं पे अगर पानी बढ़ रहा हो, ठीक है, तो यू गो विद फुल पूरा माइट के साथ, वहाँ जो है आप जो है लोगों को रेस्क्यू करो NDRF की मदद से, वो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है. ठीक है, फिर लोगों को कैंप में लाओ. कैंप रनिंग ए कैंप इज लाइक रनिंग ए सिटी. मतलब आप 105 कैंप को डेली 24 घंटे वहाँ पे 3 बार खाना खिला रहे हो लोगों को. ठीक है, उसके बाद जो है कैंप खत्म हो गया, बारिश खत्म हो गई, पानी चला गया, देन यू हैव दिस मेजर टास्क कि भाई वहाँ एपिडेमिक फैल जाएगा, है ना. यू नो कि आपने पढ़ा होगा कि कोलेरा वगैरह जो है वो कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है. उसके बाद फिर लोगों को रिहेबिलिटेट करो उनके घर में, मतलब जिनका घर चला गया, डूब गया, तो वो कैसे करो.
नाउ इमेजिन कि ये चीज पिछले 70 सालों से हर साल उन जिलों में, उन राज्यों में हर साल हो, ठीक है। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन IAS ऑफिसर, ठीक है, यू हैव दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि आप ऐसे एरियाज में सर्व कर सकते हैं। इसके लिए कोई वाहवाही नहीं मिलती। आपने शायद ही कभी पढ़ा हो कि भाई मतलब किसी का नाम सुना हो, मतलब वी आर लाइक अननोन पीपल जो बिहाइंड द फोर्सेस काम करते हैं। आप ये जरूर देख लो कि बड़े बड़े नेता जो हैं या मंत्री वहां पर जाकर विजिट कर लिए तो उनकी फोटो जरूर आएगी, बट द रियल पीपल हु वर्क बिहाइंड दो सीन्स उनकी आप कभी फोटो नहीं देखोगे। तो पर जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है कि भाई कोई गरीब व्यक्ति है जिसका घर पूरा डूब गया, नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच टू लास्ट पॉइंट, अगर आपने उसकी जिंदगी बचा ली, ठीक है ना, उसके जो मवेशी थी बह गई, आपने उसको फिर लोन दिलवा दिया कहीं से, ठीक है, उसका घर टूट गया था, फिर आपने उसको रिलीफ बांट के उसका घर जो है बनवा दिया, द इंटरनल सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट आउट ऑफ इट आई थिंक इज इमेंस। ये तो हुआ डिजास्टर रिलीफ वाला पार्ट। जैसे दूसरा न्यूज देखिए, अगर हम जैसे राजस्थान में वो हुआ है SP वाला एनकाउंटर, सो दैट इज द IPS साइड ऑफ इट। तो अगर आप IAS में आते हैं तो डिजास्टर वाला हैंडल करेंगे, इफ यू कम इनटू IPS देन यू आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन लॉ एंड ऑर्डर वाला पार्ट। तो इंडिया के बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पे बहुत तरह की समस्या है, कम्युनल इंसिडेंट हो सकता है, कास्ट बेस्ड वायलेंस हो सकता है, जैसे पिछले साल हरियाणा में हुआ था, रिजर्वेशन को लेकर इतना बड़ा राइट हुआ था, तो उसमें भी हम अखबार में पढ़ेंगे कि भाई वहां इतना हल्ला गुल्ला हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं उसको। तो लेट्स से इफ यू आर इन IPS, इफ यू आर एन IPS ऑफिसर, देन यू आर द इंचार्ज कि भाई उस इलाके में कोई ऐसी घटना ना घटे, ठीक है, यू हैव दी ऑल माइट एंड पावर कि आप जाके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपने राज्य की बात करें, पंजाब में जहां अभी हम लोग हैं, चंडीगढ़ बीइंग पार्ट ऑफ, तो 80s 90s में कोई यहाँ पे हिम्मत नहीं करता था आने के लिए, क्यों? इंसर्जेंसी इतना था। खालिस्तान वाला मूवमेंट ले लीजिए, या फिर पोस्ट जो 1984 का जो हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो कंडीशन पैदा हुई, या अर्ली मिडिल 90s में अगर आप देखें तो इतना इंसर्जेंसी था कि पीपल यूज्ड टू सडर, अगर उनके अगर पंजाब कोई बोलता था आपकी पोस्टिंग, व्हाट सिचुएशन कितना नॉर्मल है। इसका क्रेडिट किसको जाता है? वही अगेन दी अननोन फोर्सेस, अननोन लोग जो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, जो ऐसे IPS ऑफिसर्स, ऐसे IAS ऑफिसर्स जिन्होंने अपने लाइफ को स्टेक पे रखते हुए उस जिलों में काम किया, लाइफ मतलब इतना विषम परिस्थितियों में भी जो है मतलब अपने आप को इतना चैलेंजिंग काम किया, तो द क्रेडिट गोज टू देम। थर्ड इज कम्स टू GST वाला अपना अगर इशू लेते हैं, तो GST इज अगेन वो टैक्स रिलेटेड मैटर्स। सो इफ यू हैपन टू कम इनटू इंडियन कस्टम एंड एक्साइज सर्विस या इंडियन रेवेन्यू सर्विस, देन यू हैंडल द इंटायर पार्ट। मतलब इंडिया में अगर हम अखबार में पढ़ते होंगे, देन यू वुड रियलाइज कि द टैक्स टू GDP रेशियो ऑफ इंडिया इज वेरी लो बिकॉज ऑफ द नॉन टैक्स कॉम्प्लेक्स। तो जस्ट इमेजिन रोलिंग आउट अ GST लाइक फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसका कितने सालों से चल रहा था काम। सो यू बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है, और जब GST रोल आउट हो गया एंड देन रेस्टोरेंट में जाते हो, सी द बिल की जिसपे कि अब वो IGST और GST आता है, द सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट कि भाई वी वर द पार्ट ऑफ इट, हु मेड दैट थिंग हैपन, ठीक है। तो दैट्स अनदर पार्ट ऑफ। फिर आप डेली रेल में जाते हो, ठीक है, तो रेलवे रन्स ऑन टाइम, मतलब इंडिया का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इज मैसिव, ठीक है, डोंट कंपेयर इट टू USA या बाकी जगहों पे, दे हैव देयर ओन, मतलब वहां पे अलग सर्कमस्टांसेस है। इंडिया में इतनी जनसंख्या को आप कैटर कर रहे हो, तो इफ यू लेट्स से कम इनटू इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, तो यू आर द इंचार्ज कि भाई राजधानी जो है 10 मिनट लेट ना हो, ठीक है, इतनी सारी ट्रेनें जाती रहती हैं। इंडिया में एक्सीडेंट्स होते हैं, बट ठीक है, मतलब दैट उसका अपना एक सेफ्टी अलग इशू है जिसको बाद में डील कर सकते हैं, बट द सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट कि भाई 10 मिनट या 15 मिनट विद इन आपकी ट्रेन जो है शताब्दी दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली रीच कर जाती है। सो दिस इज द होल गैमट ऑफ द सिविल सर्विसेज, व्हाई शुड गेट इनटू इट। इसमें 2-3 चीजें हैं कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ, ठीक है, मतलब सेटिस्फैक्शन अगर आप चाहते हो कि हाँ किसी सर्विस से कि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू स्लीप इन द नाइट आपको लगे कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया मैंने, ठीक है, विच मे नॉट गेट हाईलाइटेड एनीवेयर, मतलब आप फेसबुक छोड़ दो, वो सब छोड़ दो, कहीं पे वो जिक्र नहीं होगा उसका, बस इंटरनल सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट। बट यू शुड बी रेडी टू वर्क इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। जैसे हम लोग बिहार में किसी की पोस्टिंग हो गई या नागालैंड में पोस्टिंग हो गई, तो यू वोंट इमेजिन, यू वोंट हैव इवन इंटरनेट कनेक्टिविटी वहां, ठीक, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगा। कमिंग टू द फैमिली इज ऑल्सो डिफिकल्ट। जैसे हम लोग बिहार में अगर पोस्टिंग होती है, देन ड्यूरिंग छठ पूजा या फिर काली पूजा में जब सब लोग अपने घर जाते हैं, योर इंटायर लीव इज कैंसल्ड। अभी जैसे बाढ़ वहां पे आया हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को एक दिन भी छुट्टी लगातार 3 महीने के लिए नहीं मिलता। हाउएवर कितना भी आपके घर में वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाए, यू वोंट गेट दैट। सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व डेफिनेटली, ठीक है। सेकंड, इन मॉनेटरी टर्म्स आल्सो द सैलरी दैट यू ड्रॉ इन गवर्नमेंट सर्विस और इन IAS और IPS वुड बी फार लेस। अभी भी अगर आप स्टार्टिंग सैलरी लोगे तो वी गेट अराउंड 55,000 या 56,000 इन हैंड, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। सो ट्रेड ऑफ है। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको पूरे लाइफ जो है मतलब एक अर्बन सेंटर में रहना है, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, देन दिस सर्विस इज नॉट फॉर यू, देन यू शुड स्टिक टू प्राइवेट वाला पार्ट। दैट इज ऑल्सो
मतलब उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंडिया के सर्कमस्टांसेस में देखें तो आई थिंक इट विल द प्राइवेट सेक्टर विच विल लीड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. गवर्नमेंट में तो एक लिमिटेड कैपेसिटी जितना गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर सकता है. अल्टीमेटली इट विल द प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे इन्फोसिस हो. गवर्नमेंट का काम है कि एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पे कि ये सब चीजें आ सके. अगर आप देखें कि भाई महाराष्ट्र में और नॉर्थ ईस्ट में क्यों महाराष्ट्र इतना डेवलप्ड है, क्योंकि महाराष्ट्र हैज दो सेट ऑफ कंडीशंस, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, वो इनेबलिंग लॉज हैं जिसके तहत कोई भी विदेशी आदमी आके या इंडिया का ही कोई आदमी अगर एक वेंचर सेटअप करना चाहे तो वी कैन डू इट इन विद इन मंथ्स. लेकिन नॉर्थ ईस्ट में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है, तो आवर रोल एज ए सिविल सर्वेंट इज टू क्रिएट सच इनेबलिंग एनवायरमेंट जहाँ पे कि लोग फियरलेस होके अपना काम कर सकें. ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर वाला पार्ट होगा. अगर आपको लगता है कि यू फिट इन दैट रोल एज बेटर प्राइवेट वाला है तो यू शुड ऑप्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर वाला पार्ट. इफ यू थिंक कि नहीं आपको ऐसा कुछ काम करना है जिसमें कि अगर एक गरीब आदमी, अगर आप अखबार में पढ़ते हैं ना कई बार कि यहाँ इसको विडो पेंशन नहीं मिल रहा है ना, महिला है, गरीब महिला है जिसको पिछले 3 सालों से पेंशन नहीं मिला, या फिर कोई स्कूल जहाँ पे गर्ल्स टॉयलेट नहीं है जिसकी वजह से उस इलाके के आसपास के जितने मतलब गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, या फिर कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पे एक्सेस टू रोड ही नहीं है जिसकी वजह से बारिश में अगर वहाँ पे पानी भर गया, नाला बन गया तो बच्चे 2 महीने तक स्कूल नहीं जा पाए. अगर आपको लगता है कि इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, देन दिस जॉब इज फॉर. आप बिलीव नहीं करोगे, आप 1 महीने में किसी भी गांव में जाते हो या फिर किसी भी छोटे कस्बे में तो यू कैन कंस्ट्रक्ट ऑल दोज गर्ल्स टॉयलेट वहां पे. ठीक है, विलिंग की आप में पब्लिक सर्विस का मोटिव है, या फिर जितने भी कच्चे रास्ते वहां जाकर उसको नरेगा के इस्तेमाल करके बनवा दो. ठीक है, जितने भी मान लीजिए महिलाएं जिनको पेंशन नहीं मिला उसका एक या 2 कारण होता है, या तो महिला के पास आधार कार्ड नहीं होता है, या फिर उसका जो है कोई उसको यही नहीं पता होता कि भाई जाना कहाँ. एज अगर कोई मान लीजिए 70-80 साल की अनपढ़ कोई महिला है, उसको कौन बताएगा कि आपको पेंशन 500 रुपए महीना. 500 रुपए महीना हम लोग के लिए हो सकता है बहुत कम हो, एक वीजा आता है 500 रुपए में, लेकिन एक ग्रामीण परिवेश में 500 रुपीज इज अ प्रिंसली सम. 500 रुपए में आप डेली 1 किलो मीठा से दूध गाँव में ले सकते हैं. तो वो 500 रुपए आप कैसे दिला सकते हो उस महिला को? यहाँ चंडीगढ़ में बैठे तो नहीं मिलेगा. तो अगर आप उस एरियाज में पोस्टेड होते हो तो देन यू हैव दिस कैपेबिलिटी कि हाँ आप एक साइन करोगे, आपका एक साइन कैन गिव दैट वो जो उस महिला को. तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें. किसी ने क्वेश्चन पूछना है अबाउट प्रिपरेशन. ही हैज टॉक्ड अबाउट कि क्या सिचुएशन है इंटरनल सिविल सर्विसेज की. बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है सिविल सर्विसेज में, अंदर जाके आपको यू कैन ब्रिंग अबाउट लॉट ऑफ चेंज. बिल्कुल सोशल चेंज ही सबसे बड़ी चेंज होती है. अगर इकोनॉमिक चेंज देखें बहुत बड़ी चेंज नहीं है, पॉलिटिकल चेंज देखें बहुत बड़ा चेंज नहीं, सोशल चेंज का बहुत बड़ा स्कोप है आपके पास इन द सिविल सर्विसेज. He has talked about the internal conditions of the services. You can ask any sort of query if you have about answer writing, about prelims, about mains, because he is the right person to ask, because he has cracked the civil services examination in first attempt. Because most of you जो भी पेपर दे रहे हैं आप यही चाहते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए. And you can ask him कि पहले अटेम्प्ट में कैसे किया, क्या क्या मन में क्या था. You can ask him anything that you want to ask. Sir, on the outlook, how much time did you give into preparation? मेरा बेसिकली ट्रैजेक्टरी ये रहा है कि आई ग्रेजुएटेड इन 2013 फ्रॉम IIT दिल्ली. आफ्टर दैट आई पिक्ड अप अ जॉब इन अ स्टार्टअप इन गुड़गांव. सो आई वर्क फॉर 6 months. देन आई लेफ्ट दैट जॉब फॉर 1 year. उसके साथ मेंस की तैयारी की, एंड आफ्टर गिविंग मेंस आई अगेन स्विच बैक टू माय जॉब. तो एक बात बोलना जरूर चाहूंगा, सिंस द सक्सेस रेट इन दिस एग्जाम इज वेरी मिनिस्क्यूल, तो आप सबके पास एक बैकअप ऑप्शन तो रहना चाहिए. जैसे इला जो है इनके पास भी एक प्राइवेट जॉब था एज अ बैकअप ऑप्शन. मैं भी एक प्राइवेट जॉब में था इससे पहले. तो वो उससे क्या होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा. आपने पूछा था कि नंबर ऑफ आवर्स, तो अलॉन्ग विद जॉब तो मतलब 4 घंटे ज्यादा नहीं हो पाता था, बिकॉज माई टाइमिंग्स वर वेरी स्ट्रिक्ट. So I used to go at office at 8:30 in the morning and return back at around 8 in the evening. तो उसके बाद मैक्सिमम 2 घंटा रात, 3 घंटा रात में और 1 घंटा सुबह, 4 घंटे से ज्यादा. सो 4 घंटे में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपका फुल प्रिपरेशन हो जाएगा. तो इफ यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस वंस, जैसे मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए आई कुड हैव गॉन अहेड विद 4 घंटे का प्रिपरेशन, बट नॉट फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट. अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो देन यू शुड मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 10 से 12 महीने जो है डेली 8 से 10 घंटा इफ यू पुट इट, देन यू विल मेक श्योर कि आपका एक बार में पूरा सिलेबस आपका हो चुका है. देन यू ओनली नीड वो जो बोलते हैं ना फिनिशिंग टच, उतना 8 से 10 घंटा यू शुड. ग्रेजुएशन में ही शुरू कर दिया था आपने? नहीं, मैंने प्लान तो सोचा था कि ग्रेजुएशन में करूंगा, बट कुडंट मटेरियलाइज. तो आफ्टर ग्रेजुएशन आई पिक्ड अप. बट हाँ ये जरूर है कि इफ यू लेट्स से आप लोग कितने यहाँ पे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में?
हाफ ऑफ द क्लास। तो आप लोग का ये रहना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में कि पिकअप ए हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। एक अच्छा न्यूज़पेपर इंग्लिश वाला पढ़ो, दैनिक जागरण और वो बंदे भास्कर टाइप। इट्स नॉट कि मतलब हिंदी अखबार मतलब इंफीरियर है वो है, बट यूपीएससी का जो बेंट ऑफ माइंड है, यूपीएससी जो पूछता है, दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, दैट सॉर्ट ऑफ मटेरियल यू विल फाइंड इन प्रेफरेबली इन इंग्लिश न्यूज। तो पिकअप आइदर द हिंदू, मतलब यहाँ पे तो मेरे ख्याल से आता होगा डेली हिंदू, या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, उसको डेली पढ़ो और कुछ अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालो, इंडिया स्पेसिफिक हो। जैसे बहुत सारी किताब है, जैसे अब एक वेबसाइट है गुड रीड्स के नाम से, तो वहाँ पे आपको रिकमेंडेशंस मिल जाएगा, या अमेजन पे ही अगर कोई एक इंडिया किताब ढूंढोगे तो नीचे बता देता है कि कस्टमर्स हु बॉट दिस आल्सो बॉट दिस, तो उसमें नीचे आपको और सारी किताबों के नाम मिलते हैं। तो पिकअप है हैबिट की, रादर देन रीडिंग मान लो बहुत ही क्रैपी सा नॉवेल, मतलब उस टाइप के छोड़ के कम से कम आप कुछ सीरियस लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट करो। इट्स नॉट एंड इट कैन, और कोशिश करो कि वो बहुत सारे डायमेंशन को स्पैन करे, जैसे वो फिलॉसफी भी हो सकता है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है। तो द ब्रॉडर योर विजन इज, उतना ही अच्छा आप यूपीएससी में परफॉर्म करें। एंड यू कैन बी आस्क्ड एनी कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं इंटरव्यू में गया तो 40 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, तो उसमें बॉलीवुड से लेकर आरबीआई क्या करती है, और मेरा जो हॉबी था मान लो लैंग्वेज लर्निंग से लेकर, और मतलब कुछ भी दुबई में क्या चल रहा है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। एंड वन क्वेश्चन कैन रिजल्ट इनटू मार्क्स डिफरेंस ऑफ अराउंड 20 मार्क्स। एंड व्हेन द रिजल्ट्स फाइनली कम आउट, यू विल सी कि भाई 25-30 नंबर में ही पूरा गेम चेंज हो जाता है। तो बिल्ड अ हैबिट की कोई भी टॉपिक हो, उसके बारे में आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जरूर हो। जैसे फिलॉसफी हो सकता है बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट चीज हो, फिलॉसफी हम क्या पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट हैव एन आइडिया कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, जो चीन वीन में थे ना वो कन्फ्यूशियस, उस टाइप के लोग क्या बोलते हैं, उनकी क्या सोच है, उसके बारे में कोई पूछ ले आपसे। इसलिए क्रिकेट में भी हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग कि क्रिकेट की क्या फिलॉसफी है, क्रिकेट कैसे, अब आपका इंटरेस्ट नहीं भी हो तो भी आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो एटलीस्ट आप एक महीने में किताब तो पढ़ ही सकते हो। अगर आप मान लो फर्स्ट ईयर में हो तो 12 किताब मान लो एक साल में पढ़े आपने, तो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट 3 साल में 4 साल में, यू विल हैव अ स्टॉक ऑफ अराउंड 50 बुक्स ऑन एन एवरेज 300 पेजेस। तो आप समझ सकते हो कितना वास्ट आपके पास एक नॉलेज क्रिएट हो जाए। तो न्यूज़पेपर, बुक्स, और कोई अच्छा अगर आप टीवी डिबेट अगर आता हो, आजकल तो अर्णब गोस्वामी इधर आ गए रिपब्लिक टीवी पे, तो अगर ठीक है चलेगा वो, तो वो ही देख लो। तो यू शुड हैव अ अंडरस्टैंडिंग की क्या है, बिकॉज आफ्टर यू ग्रेजुएट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू पिक इट अप। बहुत आसान होगा। अगर आपने कभी किताब को हाथ नहीं लगाया, कभी आपने अखबार को हाथ नहीं लगाया, देन द थिंग्स विल बी वेरी एलियन टू यू। देन दिस कंसेप्ट कि आप एक साल में क्लियर कर सकते हो वोंट स्टैंड ट्रू फॉर यू। आपको फिर 6 महीना 8 महीना तो जानने में लगेगा कि भाई राज्यसभा में क्या चल रहा है, लोकसभा क्या चीज होती है, व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीएसटी, वो नहीं पता चल पाएगा। तो मेंटेन दिस हैबिट कि आप एटलीस्ट वो करो। एंड रिगार्डिंग द फाइनल प्रिपरेशन पार्ट ऑफ इट, आई थिंक लास्ट ईयर में इफ यू कैन अफोर्ड इट, ठीक है, देन इट्स गुड फॉर लास्ट ईयर में कर लो, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस डायनेमिक होता है। तो व्हाट स्टूड ट्रू लेट्स से इन 2012 मे नॉट होल्ड ट्रू इन 2017, क्योंकि 12 में 2 ऑप्शनल होते थे, उसमें जीएस का उतना वेट मतलब उतना इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करता था। सो अगर कोई 12 में कोचिंग लेके बैठ जाएगा, देन 14-15 में ही वुड हैव टू टेक इट अगेन, तो दैट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड रिसोर्स बोथ। तो अगर आप मान लो 2020 का आप ग्रेजुएट हो रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग टू अटेम्प्ट इन 2020, तो टेक योर कोचिंग 2019। तो दैट वुड फाइनल ईयर में उतना वर्कलोड भी नहीं होता है। आप मेरे ख्याल से अगर बीटेक कर रहे हो तो इट वुड मेनली इन्वॉल्व प्रोजेक्ट वर्क। अगर आप, मुझे उसका नहीं पता बीए और बीएससी में क्या करते हैं, बट इट वुड बी रिलेटिवली लाइट, उस वक्त आप करें, तो दैट वुड बी। आपने कोचिंग कहाँ से करी? यार घर वालों ने पैसे डाल के करा दिया था, तो वहाँ पे दिल्ली में तो एक बाजीराम एंड रवि हैं, तो वहाँ गए थे जीएस। सर जैसे आपने बताया कि आईएएस बन गई, हम लोग बहुत सारी रिपोर्ट नहीं होती हैं सर्व करने की कंट्री को। सर अभी जैसे सुनने में आता है कि जो सिविल सर्वेंट्स है पॉलिटिकल प्रेशर्स एक्सर्ट करते हैं, जैसे कि थोड़ा टाइम पहले हमने देखा श्रेष्ठा ठाकुर, हाँ जी सर, डीएसपी जो वहाँ पे, यस सर, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ। तो सर अगर ऐसी सिचुएशन आता है तो आपके एक्सपीरियंस में, आप लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका है, क्या आपके सामने ऐसी सिचुएशन आया है, और अगर आएगा तो आप कैसे करना चाहोगे? ये तो बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आई थिंक, और ये आपका पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब होगा। द डे यू लैंड अप इन योर जॉब, उस दिन से लेकर जिस दिन आप अपना फाइनल 60 इयर्स कंप्लीट करोगे, उस दिन एटलीस्ट आईएएस और आईपीएस में तो यू आर डेली इन टच विद पॉलिटिक्स। तो आपको डेली सुबह शाम फोन कॉल आएंगे, ठीक है, और स्पेशली जो पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट्स, मान लो यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, वहां तो यू आर इन डेली इन टच विद। तो देखो बहुत तरह के उनके, मतलब हम लोग डेमोक्रेसी में काम करते हैं, ठीक है, तो कितना भी कुछ हो जाए तो पॉलिटिकल जो भी लोग हैं दे आर योर रियल मास्टर्स, क्योंकि हम लोग जनता का जो
वो है ना क्या बोलते हैं वचन या जो भी बोलते हैं वो वही अल्टीमेट चीज है। तो सिंस वी हैव सिलेक्टेड देम तो हमारा मैंडेट है कि उनके उसको फॉलो करना। बट दो तरह की चीज आपके पास रिक्वेस्ट आएंगी, एक आएगा कि बिल्कुल ही जेन्युइन रिक्वेस्ट, तो ये लगा लो कि मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है एंड दैट टू इन अ स्टेट लाइक बिहार, आउट ऑफ 10 रिक्वेस्ट 5 to 6 वुड बी जेन्युइन कि भाई सर फोन कॉल आएगा कि सर वहाँ पे जो है रोड नहीं है वो बनवा दो, ठीक है, यहाँ पे स्कूल खराब हो गया वो करवा दो, ठीक। और एक दो उसमें जो है वैसे रिक्वेस्ट होंगे जो हो सकते हैं कि उतने लीगली वो वैलिड चीज ना हो, ठीक है। तो आपके पास वही दो ऑप्शन है उसमें, या तो उसके बाद अगर तो आपको वो सब ना थियोरेटिकल चीज नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट कि आप कितना अच्छा उसको हैंडल करते हो। कुछ लोगों का एटीट्यूड है कि दे विल हाईली पूरा कन्फ्रंट कर देंगे उसको, ठीक है, कि हम ये भी नहीं होने देंगे वो भी नहीं होने देंगे, विच आई डोंट थिंक इज ए गुड मतलब वो चीज, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू वोंट अचीव एनीथिंग। अगर आप मान लो कि 35 साल के सर्विस में 75 बार ट्रांसफर ही हो गए तो फिर तो आप हर जगह मतलब 3 महीना काम करते हो और 3 महीना इज ए वेरी लेस टाइम कि आप कुछ कर सको। तो इट्स बेटर टू हैव अ रिकंसिलिएशन वाला चीज, ठीक है। इट्स नॉट यू डू एनी इलीगल थिंग, और आप पे कभी वो भी प्रेशर नहीं आएगा कि आप बहुत इलीगल काम करो, इतना जरूर आ गया तो आप ट्रांसफर ले सकते हो। पर वो जो होता है ना कि पॉलिटिकल मास्टर्स आर ऑलवेज मतलब नेगेटिव ही बात करते हैं, दैट इज नॉट ट्रू। कहीं भी जाओगे दे आर ऑल्सो वेरी हाईली एजुकेटेड, अच्छे लोग आपको मिलेंगे, मिक्स ऑफ बोथ ब्लैक सीप एज वेल एज जो बोलते हैं अच्छे लोग, दोनों मिलेगा। तो कन्फ्रंटिस्ट एटीट्यूड रखोगे देन यू लैंड अप इन ट्रबल। अगर थोड़ा ये है कि हाँ नेगोशिएट कर सकते हो, थोड़ा उसके काम कर दो, जैसे किसी ने बोला भाई रोड बनवा दो, तो अगर आप देख रहे हो कि हाँ भाई वहां पे रोड सही में नहीं है एंड इफ यू कैन टेक अप दैट हाई प्रायोरिटी, आप उसको काम कर दो, तो अगली बार से वो भी आपको तो कम तंग करेगा, ठीक है, और आपने काम भी अच्छा कर दिया। तो वैसा कर लो। अगर आप सोचोगे नहीं भाई ये मिनिस्टर ही जो है हमेशा उल्टी सीधी बात करता है, हम कभी काम नहीं कर सकते ये वाला, फिर तो आपके लिए दिक्कत है सर। मैथमेटिक्स तो जितने भी लोग मेरे ख्याल से जेईई की तैयारी किए होंगे, ठीक है, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर दी 2 बेस्ट सब्जेक्ट्स एनीवन कैन ऑप्ट फॉर। तो मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच था, तो जब 2 ऑप्शनल थे तो आई हैड डिसाइडेड किया वो टेक अप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। जब एक बचा तो आई थॉट कि आई टेक मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, मतलब इट्स अ रिवार्डिंग सब्जेक्ट। तो ऐसा है कि अगर आप मैथ्स में इफ यू स्कोर वेल तो मैथ्स के स्कोर्स बहुत हाई जाते हैं। जैसे मेरे टाइम में माय बैचमेट स्कोर 346 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो दैट वाज इनफ फॉर हिम टू गेट अ रैंक विद इन टॉप। बट उसमें यह है कि किताबों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो अगर उसके किताब को रख दें तो यू वांट टू बी एबल टू सी, तो इतना कम से कम हो ही जाता है, 12-13 किताबें। How to deal paper for ethics? एथिक्स का तो चेंज हो चुका है काफी सिलेबस, तो इला में ज्यादा बेटर बता पाएगी कि एथिक्स कैसे डील करते हैं। हमारे टाइम में तो इट वाज इन एक्सपेरिमेंटल फेज, तो क्वेश्चंस काफी मतलब आसान थे, या ज्यादातर 2014 का अगर आप पेपर देखोगे तो वो बिल्कुल ऑटोबायोग्राफी लिखने टाइप था, कि आप हर क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि रिलेट इंसिडेंट फ्रॉम योर ओन लाइफ, कि जहां आपने ये काम किया वो काम किया। नाउ दी क्वेश्चंस हैव इवॉल्वड, इट हैज बिकम वे टू टेक्निकल, और अनलेस यू हैव अ गुड साउंड थ्योरेटिकल बेंट ऑफ माइंड, मतलब वो आप राम कहानी लिखने से नहीं चलेगा। तो मैं अगर मैं दोबारा लिखता तो मेरे ख्याल से उतने मार्क्स नहीं आते, मिला के है। I think, yeah, as you rightly pointed out, that it has become more theoretical. So now you are expected to know what was Gandhi's view on the 7 sins, and what are the theories. How did Pluto see utilitarianism and blah blah blah. So you have prescribed books for those. So and then there are some 9 to 10 questions based on those theoretical aspects. Other 6 case studies, I think. 5 case studies. So for case studies, I think you get a repository and they are like real life situations. As sir has mentioned in some of the cases, you are posted in a situation where there is a conflict of interest. So those I think you will build up over the time when you practice case study. And yeah, as far as the first part is concerned, make sure you are thorough with your thinkers. Some of the books, you can quote books. Some of the prominent ones that I had read was Gurcharan Das, The Difficulty of Being Good. He writes very good in terms of the philosophy that when you are in a dilemma. So if you quote some of those literary works, it's better. 2-3 किताब आप पढ़ सकते हो, जैसे कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बाय महात्मा गांधी। तो इट हैज मेनी इंस्टेंसेस वेयर ही वाज इन अ डायलेमा व्हाट टू डू, ठीक है, और कैसे करना, मतलब फेस्ड विद अ पोजीशन फ्रॉम लेट्स से साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट वेयर यू हैव 2 ऑप्शन, आइदर टू लीव द प्लेस एंड गो इन अ कन्फ्रंटेशन मोड। तो ही मेड दैट चॉइस। तो अब उसमें कैसे डील करेंगे, दैट बुक्स हैज अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स व्हिच यू कैन एक्चुअली कोट इन योर एग्जामिनेशन। और दूसरा है कि अब कुछ टेक्स्ट हैं, जैसे मान लो भगवद गीता हो गए या फिर विवेकानंद के स्पीचेज हो गए, ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो उसको पढ़ सकते हो, दैट विल हेल्प अ लॉट। तो इन एथिक्स यू हैव टू बी इनोवेटिव,
मतलब जितना अच्छा, जैसे जो किताब है, जैसे मेरे ख्याल से कौन सी हमारे समय तो कोई बुक नहीं थी जो थ्योरेटिकल पेपर बन के, अभी हो सकता है कोई आ गई हो। वही on aptitude only it's Yes, good. it's on Yeah, so only that section is dealt with. Otherwise, वो पढ़ सकते हो जो सेकेंड ARC की बुक है, एथिक्स इन गवर्नेंस, रिपोर्ट नंबर 4 है मेरे ख्याल से। we don't- so there are excerpts from there which you need to be not in it. Michael Sanders. यूट्यूब पे एक लेक्चर है, हार्वर्ड में एक प्रोफेसर है माइकल सैंडर, तो उसके नॉट इंटायरली ऑन एथिक्स, इट्स अ लेक्चर ऑन जस्टिस। तो वो बेसिकली इस पे है कि जैसे उसमें एक एग्जांपल है कि आप जो है क्या बोलते हैं, जा रहे हो, मतलब यू आर वर्किंग इन रेलवे वाला काम, और आप देख रहे हो कि ट्रेन आ रहा है जो 4 लोगों को मार देगा, ठीक है? और उसमें दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसमें कि एक ही आदमी मर गया। तो व्हाट यू वुड, मतलब वुड यू चेंज द ट्रैक एंड लेट वन पर्सन डाई हु वोंट हैव डाइड इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, और यू विल लेट दैट ट्रेन गो ऑन द इनिशियल पाथ एंड लेट द एंटायर बस, जिसमें कि मान लो 25-30 लोग हैं, डाई। तो वो इस तरह के डायलेमा को कंसिडर करता है। सो देयर इज अ सेट ऑफ 12 लेक्चर्स, यूट्यूब पे बहुत फेमस है, मतलब इवन उसको जरूर देखें, ऑल्दो दे आर नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल एथिक्स के पेपर में, बट दैट विल गिव यू अ गुड सेंस कि एथिक्स के पेपर्स को, केस स्टडीज को कैसे डील। और आई थिंक जो सेकंड पार्ट है केस स्टडी वाला, आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें इफ यू गो अप तो आपके मार्क्स बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। यू मे एंड अप गेटिंग 65-70, which is a disastrous marks in ethics if you don't have your case study right. So for that written practice और especially getting it checked by, जैसे कि आप चंडीगढ़ में हो तो यहीं पे आप ethics का जो टेस्ट सीरीज होगा उसी को अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, then get it checked उससे कि कहाँ पे आप मतलब गलती कर रहे हैं। If you get your case study right, you will end up more than 100. अगर वो गलत करते हो, theoretical वाले में तो अगर मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो you are definitely sure कि किसी से नहीं होगा। जैसे इन्वायरमेंटल एथिक्स का क्वेश्चन आ गया था से लास्ट 2016 में, कुछ मतलब टेढ़े क्वेश्चन आ गए, अब 7 सिंस आ गए, अब लोगों को 1-2 सिन के अलावा याद ही नहीं आ रहा है। यू कैन बी श्योर कि इसी हॉल में अगर मैं पूछ लूं, लेट्स से विच इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूपीएससी कैंडिडेट की 7 सिन किसको सातों को सातों याद, तो बहुत कम लोगों को याद हो क्या है। कुछ हो सकता है कि झूठ ना बोलो या फिर चोरी ना करो, उससे कुछ होगा, पर पता नहीं, मुझे भी याद नहीं। तो यू कैन बी श्योर कि किसी को नहीं आएगा, तो वो वाला मार्क्स तो वैसे ही कम हो जाना है। तो थ्योरेटिकल वाले में ज्यादा मत सोचना, उसमें जितना लिख पाओगे काफी है। केस स्टडी यू हैव टू राइट वेरी गुड, तो एक उसका स्ट्रक्चर, जैसे मेरा खुद का एक स्ट्रक्चर था कि सभी क्वेश्चंस को मैं वही ABCD फॉर्मेट में लिखता था, तो दैट फेच्ड मी गुड मार्क्स। आई गॉट अराउंड 113 व्हिच वाज गुड मार्क्स। तो भी तो बोले तुम ज्यादा बेटर। Sir, how to maintain consistency on a long duration of preparation? 1.5 years for 1.5 years. How to be consistent? You are the तो वही बोले ना, देखो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में होता है कि यू सेट अ वेरी एम्बिशियस टारगेट। Yes. जिस दिन कॉपी कलम लेके बैठे उस दिन सोच लिया कि अब तो दिन में 18 घंटे का शेड्यूल बनेगा। 7 दिन का वो 128 घंटे का कुछ 130 घंटे का शेड्यूल बना लेते हैं, एंड देन इट्स अ वेरी डिजास्टर्स। कभी मत करना। स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स, मतलब स्टार्ट करो कि भाई 4 घंटे ही डेली पढ़, क्योंकि हमारा साइकोलॉजी ऐसे काम करता है ना कि इफ यू अचीव समथिंग देन इट गिव्स यू अ पॉजिटिव फीडबैक, देन इट रिइंफोर्सेस कि नहीं आप वो काम कर सकते हो। अब किसी को बॉडी बिल्डिंग करे, इनका अच्छा लग रहा है मतलब बॉडी, तो अगर आप सोचोगे कि भाई पहले दिन ही 60 किलो उठा लेंगे तो वो तो नहीं होना है। स्टार्ट मतलब छोटे छोटे स्टेप्स, तो स्टार्ट मतलब बिल्कुल ही 3 घंटा स्टार्ट करें, बट यू अचीव दैट, ठीक है। और उसमें 2-3 चीजें कंसिस्टेंसी में जो आजकल बाधा डालती है वो है आपका वो इंटरनेट, व्हाट्सएप। इंटरनेट गीता में एक श्लोक भी है कि दुनिया का शत्रु सबसे बड़ा कौन है? इंसान। तो खुद ही सबसे बड़ा शत्रु, और सबसे बड़ा मित्र कौन है? तो वही इंसान ही खुद का ही सबसे बड़ा मित्र होता है। सेम चीज है इंटरनेट फॉर यूपीएससी, सबसे बड़ा आपका वो है बंधु, दोस्त, जो भी बोलो, और सबसे बड़ा दुश्मन भी वही है। तो डिलीट कर दो फेसबुक, ट्विटर, सब 1 साल के लिए भूल जाओ, तो इट विल गिव यू पीस ऑफ माइंड ना। क्योंकि सोचो ना, अगर आपने एक फेसबुक पोस्ट देखा, अरे भाई वो तो वहां चला गया, होता है ना, सोना लेक में वोटिंग कर रहा है, तो आपको लगेगा कि यार हम यहाँ पे क्यों रूम में बैठ के लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, हम ही सुनना लिखते हैं। दैट विल ऑक्युपाई योर माइंड फॉर एंटायर डे। उसको छोड़ दो, उस चीज को मत करो। तो फेसबुक हटा दो, ये हटा दो, तो जितना एक्सटर्नलिटीज हटा सकते हो उतना कोशिश करो। क्योंकि देखो 1 साल में अगर सिलेक्शन हो गया फिर तो क्या है, फिर तो घूमते रहो, सपना ले घूमो, जहाँ घूमना है घूमो। जैसे इला का सिलेक्शन हो गया तो अब चंडीगढ़ में है, अभी घूम रहे।
नहीं तो अभी ये फिर से वही मेस का तैयारी कर रहे थे। Sir, consistency for clearing it in a one attempt only. देखो वन अटेम्प्ट में दिस यहाँ पे जो है ना लक और डाइस रोल ऑफ डाइस जो भी बोले वो फैक्टर आता है कि यू कैन नॉट गारंटी कि यू विल गेट दैट रैंक, क्योंकि द मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी लेस। जैसे मेरी मान लो 58 रैंक थी तो माय मार्क्स वर 966 उस समय, एंड द फाइनल रैंक एट विच इट क्लोज्ड आईएएस के लिए जनरल कैटेगरी में इट वाज 952, ठीक है 952 या 951। 15 मार्क्स अगर मेरे कम होते, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी नहीं बोल रहा, मैं दोबारा एग्जाम दे रहा हूँ, मतलब आई वुड हैव गॉट दूसरा सर्विस डेफिनेटली। हाँ, ये जरूर इंश्योर कर सकते हो कि यू विल गेट अ रैंक, मतलब पीडीएफ जब खुलेगा तो उसमें आपका नाम आएगा, बट एट विच पोजीशन यू विल सी योर रैंक इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। पर हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि सेट ए स्मॉल टारगेट फर्स्ट, अचीव दैट एंड मेक श्योर कि एज यू बिल्ड अप ओवर टाइम तो यू आर एबल टू पुट इन एटलीस्ट 8 to 10 hours एवरी डे। दैट विल डेफिनेटली इंश्योर कि आप जो है वो करें, और अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि भाई जैसे जीएसटी का टॉपिक हुआ या सिक्किम वाला इंसिडेंट हुआ तो अब इंडिया चाइना के जितने भी बॉर्डर पास है सबका नाम याद कर लो, दैट डजंट हेल्प, ठीक है। जस्ट हैव दिस, क्योंकि कोई भी टॉपिक ले लो, कोई भी रैंडम टॉपिक, वो किसी भी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है। प्रीलिम में एक क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में मैक्स कोई 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, और इंटरव्यू में भी 2 मिनट आपको बोलने कोई बोलेगा, है ना। जैसे आपसे पूछो भाई जीएसटी क्या फायदे नुकसान है, तो एज ए लेमैन तो बता ही सकते हो ना, एंड दे ओनली नीड लेमैन लैंग्वेज। अगर आप रिसर्च करने लगोगे देन यू विल वेस्ट योर एंटायर डे, या पूरा 3 हफ्ते, मतलब 1 हफ्ता ही आपने जीएसटी पढ़ने में लगा दिया, तो दैट इज नॉट अ वेल कंसिडर्ड। इंटरव्यू जैसे यूपीएससी इंटरव्यू में 3000 स्टूडेंट्स को लाते हैं हर ईयर से, तो उसमें सर कुछ स्टूडेंट आईआईएम से भी होंगे, आईआईटी से भी होंगे, और कुछ सर सिंपल कॉलेज से भी होंगे जिन्होंने सर ग्रेजुएशन करा है। तो सर अब जब हम इंटरव्यू में जाएंगे तो हमारा मेंस का स्कोर हमारे बोर्ड के पास होगा? नहीं, मेंस का स्कोर नहीं पता, दे डोंट हैव एनी। तो सर वो इन मतलब जैसे कॉलेजेस का कुछ फर्क पड़ता है? सपोज मैं आईआईटी से नहीं हूँ, आईआईएम से नहीं हूँ, तो एंट्री बोर्ड पे से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? पॉजिटिव पॉइंट होता है सर आईआईटी आईआईएम वाले में? अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं तो मेरे ख्याल से इसके लिए सही कैंडिडेट को बताने के लिए, क्योंकि बैठो तो जैसे मैंने अपनी इनिशियल पढ़ाई की थी बिहार में, तो मैं 7th क्लास तक बिहार में ही पढ़ा और हिंदी मीडियम में पढ़ा, तो मुझे भी हमेशा होता था कि भाई आई स्विच फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश मीडियम लेटर, कि अब जो है अब कम्पीट तो नहीं कर पाते डीपीएस वाले लोगों से जो दिल्ली पब्लिक में है या चंडीगढ़ में बड़े स्कूलों से होंगे, तो ये एब्सोल्युटली कैन नॉट कम्पीट। तो जब मेरे कॉलेज का इंसिडेंट बताता हूँ कि जब ये कंसल्टिंग वाले फॉर्म आते हैं बड़े बड़े, है ना, जो प्राइवेट सेक्टर के इंटरप्राइज, आईटीसी लिमिटेड या डेलॉयट या केपीएमजी, तो उन समय तो हम लोग कुछ बाहर ही जाते थे पहले, क्योंकि आप इतने लेट अगर इंग्लिश मीडियम में स्विच कर रहे हो तो हाउएवर यू ट्राई, मतलब योर इंग्लिश वोंट बी एज फ्लुएंट एज उन लोगों से। बट यूपीएससी इज डिफरेंट ऑल टुगेदर, यहाँ पे तो फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज, ठीक है। इनफैक्ट उसका उल्टा रिवर्स हो सकता है एक्शन, कि अगर आप आईआईटी से हो तो दे विल हैव दिस एक्सपेक्टेशन कि आपको बहुत ज्यादा आता है, और वहां पे अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर आपके मार्क्स कम देंगे। तो मेरे बैच में तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक कोई इंटरव्यू लाइफ में दिया ही नहीं। जैसे मेरी बैचमेट है पूजा पाठ, वो राजस्थान से है, उनकी 163 रैंक थी, तो उनके इंटरव्यू में 210 नंबर, वो आज तक लाइफ में किसी इंटरव्यू में नहीं, और हिंदी मीडियम से उन्होंने अपना पूरा इंटरव्यू हिंदी में दिया, ठीक है। तो दे वेरी, मतलब उनको तो बहुत पसंद होता है कि मतलब रूरल बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, जैसे मैं खुद बिहार से था, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि यार बिहार, झारखंड या फिर राजस्थान या पंजाब, कोई भी किसी भी ग्रामीण परिवेश से पढ़े लोग अगर यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है, तो इट्स अ मैटर ऑफ उनके लिए मतलब अचीवमेंट वाली बात। तो उनको लगता है कि यार ऐसे लोगों को तो और 5 नंबर 10 नंबर एक्स्ट्रा दे के, ठीक है, और मतलब बढ़ावा देना चाहिए। बट हाँ, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अगर आप ये सोचोगे कि हम रूरल बैकग्राउंड से हैं और जीएसटी का क्वेश्चन आया और मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि जीएसटी क्या चीज है, तब उसमें आपको कोई दया और उसकी करुणा की मतलब आशा मत रखिए, ठीक है। बट अगर आपसे पूछा जा रहा है जीएसटी क्या चीज है, उससे क्या फायदे नुकसान है, तो अगर आप मिक्स ऑफ हिंदी इंग्लिश या कैसे भी बोल पाते हैं, बट इफ योर पॉइंट्स आर करेक्ट एंड वैलिड, ठीक है, यू विल गेट इट। आई थिंक मोर मार्क्स देन जो कि एलिट, सो कॉल्ड एलिट स्कूल से लोग। Sir, I am MBA from PU and right now working in Airtel. Yes, sir. So right now I am in dilemma that should I leave my job for this preparation or not? Like I'm not able to decide. तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम मिलता है पढ़ने का। Actually, I am posted in Ludhiana, so it would be not easy for me to take coaching here out in Chandigarh along with the job. So what should be done? यार ऐसे केस में तो क्या बोलते हैं, Like if I leave my job, तो अगर गैम्बल like मैं हाँ, नो रिस्क, yeah.
तो इनका भी यही था कल से, इन्होंने भी जॉब छोड़ा था। तो मैं तो इसका फॉर्म एडवोकेट हूँ कि आप जो है हाफ अटेम्प्ट अटेम्प्ट से यूपीएससी को कभी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आपसे प्रीलिम भी हो, प्रीलिम मान लो आपने क्लियर कर लिया तो मेंस में अटक जाओगे, मेंस अटक कर लिया तो बाद में इंटरव्यू में अटक गए, और सब क्लियर हो गया तो पता चला वो मतलब लिस्ट में नाम नहीं आया, मतलब या ढंग की जगह नाम नहीं आया, तो वो उस काल चक्र में क्यों फंस रहे हो जिसमें कि 3 साल 4 साल आप मतलब टाइम वेस्ट करोगे। इट्स बेटर अगर आपने सोचा है, इट्स अ फाइनेंशियल रिस्क। जैसे मैं खुद एक अच्छे हाई वेल पेड जॉब में सेटल था, और उसको छोड़ के तो यार सबके लिए शॉकर था, फैमिली भी मान लो कि भाई इतना बड़ा जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, तो 1 साल तो आपको फाइनेंशियल रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर आप इसमें आना चाहते हैं। सर like now said there is a lot of uncertainty in this. नहीं, पर मैं आपको You बोला don't ना कि get- अगर आप बिल्कुल तन मन धन से पढ़ाई कर लेते हो डेली 8 से 10 घंटा 1 साल तक बिना ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस हुए, एंड इफ यू राइट वेल, गेट इट चेक, टेस्ट अटेम्प्ट करो, मॉक टेस्ट दो, देन यू आर श्योर कि एटलीस्ट यू विल गेट द रैंक। उसमें फायदा ये होता है कि वंस यू लेट से मेक इट टू सर्विस, लेट से जो आपको पसंद नहीं था, जैसे मान लो आप आईपीएस में जाना चाहते थे, पुलिस में, पंजाब में देखा मैंने बहुत सारे लोग पुलिस में जाना चाहते हैं, लेट्स से यू वांटेड टू गो टू आईपीएस, आपको मिल गया रेलवे, बट स्टिल यू हैव दिस ऑप्शन कि आप जॉब के साथ फिर तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आते हो देन यू हैव दिस लग्जरी कि आप 1 साल फिर से ऑफ ले सकते हो, या फिर आप मतलब होता है ना छुट्टी ले लो 3 महीना 4 महीने का, दैट यू कैन गेट, एंड यू हैव एन एश्योरेंस कि यू हैव अ ग्रुप ए सर्विस अलॉन्ग विद दिस फैक्ट दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर आईएएस वाला। पर अगर डेली 3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाते हो देन इट्स नॉट अ वेल एडवाइजेबल कि आप मतलब यूपीएससी का एग्जाम So then I have to leave the job also. 1 साल का कुछ तो मतलब बैकअप रखो, ऐसा कुछ रखो जैसे मैंने अपना जॉब छोड़ा था ये सोच के कि इफ आई वांट टू रिटर्न बैक, व्हिच आई इवेंचुअली डिड आफ्टर माय मीन्स, तो आई एम एबल टू रिटर्न, मतलब उसके लिए वो ओपन, वो जो डोर है उसको ओपन रखो कि अगर आप छोड़ रहे हो। Sir, like I am very much confused right now कि after 1 year I'll be able to work as a fresher or not. Like right now I am a fresher. बाद में कंपनीज बोलेगी आपने 1 साल कहाँ खराब किया। Like companies don't prefer person. हाँ बिल्कुल पता है, मेरे केस में वही। तो देखो दूसरा ऑप्शन ये एग्जिस्ट करता है कि डायरेक्टली गोइंग मतलब जंपिंग इनटू द यूपीएससी वाला मोड, यू क्लियर अ सिंपलर एग्जाम। मतलब अगर आप यूपीएससी तैयारी कर ही रहे हो तो आप बैंक का एग्जाम क्लियर कर सकते हो या फिर दूसरे किसी एग्जाम में जा सकते हो, तो दैट विल मेक श्योर। जैसे बैंक में कोई चलाता है, बैंक मेरे बैच में बहुत सारे लोग थे जो बैंक में काम करते थे और उसके बाद दे गॉट इनटू आईएएस, उन्होंने पहले बैंक वाला एग्जाम क्लियर किया। उसमें आपको फायदा ये है कि आपको पास एम्पल हॉलीडेज और एम्पल छुट्टियां मिल जाती है और सैटरडे संडे फ्री है और दिन में भी उतना वर्कलोड नहीं है, तो उसके थ्रू आप फिर स्टेप वाइज अप्रोच कर सकते सर जो हम न्यूज़पेपर पे नोट्स बनाएंगे वो पता कैसे चलेगा कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है? अभी आप काफी कंफ्यूजन। मतलब ग्रेजुएशन में हो क्या? ग्रेजुएशन है, थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहे हो। तो यार अभी तो मैं तो नोट फोर्स नहीं बनाए थे। थर्ड इज फाइनल ईयर, थर्ड ईयर आपका फाइनल ईयर, आप यू विल बी राइटिंग 2018 अटेम्प्ट। सो मैंने तो आई हैड मेड सो फॉर प्रीलिम्स मैंने बड़े फैक्ट ओरिएंटेड नोट्स बनाए थे कि यू नो एस्ट्रोसैट यहाँ से लॉन्च हुआ था, इतना ये था, एक्सपायरी, तो वो एकदम पिन पॉइंटेड थे। तो एक तो वो नोट्स होते हैं, एक जो मेरे ख्याल से सर भी बता रहे हैं कि आप लोगों को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है वगैरह। सो फॉर मेन्स आई हैड मेड 4 सेपरेट नोट्स कॉपीज, GS1, GS2, बिकॉज उनका सिलेबस काफ़ी यू नो एक्सक्लूसिव होता है, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव। तो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए अलग तरह से नोट्स बनाने होंगे आपको। प्रीलिम्स में काफ़ी फैक्ट्स ओरिएंटेड होता है और नोट्स का जो एक फ़ायदा होता है कि वो रिविजन इन्हांस कर देता है आपको वापस किताबों पे नहीं जाना होता है। और न्यूज़पेपर में बुकमार्क्स वगैरह मत बनाए, काट के कटिंग्स मत, ज़्यादा रिटेंशन नहीं होता है। हैंड एवर नोट यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐप होती है तो, जैसे कहीं जा भी रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं तो पढ़ लिया, सो दैट रियली हेल्प्स। चिपकाने वाला काम तो बिल्कुल ही मत करना, बहुत सारे लोग करते हैं ना कटिंग काटना। मैं मेंस एग्जाम सेंटर पे था, वो एक बंदा पूरे झोले से तावड़ा निकाल दिया, वो उसको नहीं देखा होगा इससे पहले, काट के चिपका लिया, बस हो गया, वो चला गया, जिंदगी में चला, तो कभी मत। अब तो मतलब इंटरनेट का फायदा ऐसे ले सकते हो ना कि जैसे मान लो ट्रेनिंग आई ऐसी तो इनका ही कंपाइलेशन है, जो भी आपको पसंद हो, मतलब 3-4 सोर्स हैं, तो IS बाबा है, जितने भी नेट पे हैं, तो आप कोई देख लो, कोई ऐसा मैगजीन 3-4 को सर्वे कर लो जो आपको लगता है कि प्रोवाइड्स अ गुड जिसके आप राइटिंग स्टाइल से बहुत कंफर्टेबल,
ठीक है, तो अलॉन्ग विद योर न्यूज़पेपर आप उसको भी कर सकते हो। जैसे इला ने बोला कि कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो बस उसका जिस्ट लिख लो कि भाई अगर इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है डोकलाम में जहाँ पे, तो बस अब लिख लो कि भाई डोकलाम में ये हुआ, चाइना ने इसमें कोई अगर इंपॉर्टेंट कुछ कर लिया हो तो एक दो लाइन उसका लिख लो, इंडिया ने कर लिया उसका लिख लो। पूरी राम कहानी लिखोगे तो वो इतना उथर क्रिएट हो जाएगा, फिर उसको कभी आप दोबारा रेफर नहीं कर सकते। Sir, so what was your strategy for attempting those means questions? In GS 1 to 3 4 questions. तो देखो उसमें दो तरह के लोग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। एक तो होता है कि आप सारे क्वेश्चन लिख लो, मतलब आपको कुछ आइडिया भी नहीं है तब भी उसमें जो है एक पेज भर दें, तो आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दैट स्ट्रेटजी। जैसे मैंने पेपर 1 में जीएस का जो था, तो मेरा ज्योग्राफी उतना अच्छा नहीं था, ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम आई कुड नॉट रिवाइज। तो 25 में से मैंने 18-19 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, पर उसको ढंग से किया, ठीक है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सोच के 1 मिनट सोच के कि मैं इसमें क्या लिखने वाला हूँ, फ्रेमवर्क बना के लिखा, और आई गॉट अराउंड 96 मार्क्स। तो दैट वाज गुड, क्योंकि 18-19 क्वेश्चन में 96 5 मार्क्स पर क्वेश्चन। वहीं मेरे कुछ दोस्त थे जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं कि दे विल राइट एनीथिंग, जो भी दिमाग में आया लिख दिया और बिना सोचे समझे कि क्या लिख रहे हैं, जस्ट टू फिल पेजेस। तो उन्होंने 25% अटेम्प्ट कर दिया, तो उनके मार्क्स आए 84-83। तो मैं तो इसमें मानता हूँ कि यूपीएससी में ब्लफ करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, तो इट्स बेटर कि आप उन क्वेश्चंस में मत ही लिखो। इला हो सकता है कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, मेरा है कि मत लिखो अगर नहीं आता है, क्योंकि मान लो कि आप एग्जामिनर हो, ठीक है, और पहला ही क्वेश्चन आया कि आप क्या बोलते हैं ना जीएसटी क्या है फॉर एग्जाम्पल, और आपने उसमें बोले कुछ उसका कुछ उल्टा ही लिख दिया, तो सोचेगा ना कि भाई कैसा है कैंडिडेट, मतलब इसको जीएसटी का भी मतलब बेसिक नहीं पता है। या फिर कुछ और पूछ दिया कि भाई 119 अमेंडमेंट क्या था कॉन्स्टिट्यूशन, या 73rd अमेंडमेंट क्या था, आपको हेड एंड टेल उसका पता नहीं है, तब भी आप उसमें लिखे जा रहे हैं, तो फिर उसको लगेगा कि यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दैट आई थिंक इम्पैक्ट्स योर फर्दर क्वेश्चंस में क्या मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो अगर आप 3rd क्वेश्चन पढ़ेगा, इवन इफ इट जेन्युइन, तो उसको लगेगा कि यार 2 क्वेश्चन में तो इसने ब्लफ ही मारा है। तो मुझे लगता है कि आपको जितना आता है उतना अगर ढंग से अटेम्प्ट कर लोगे यू विल गेट गुड। इला का दूसरा स्ट्रेटजी, Because by the time I had attempted, there were only 20 questions, and good, you have good time, so you can easily spend 7 to 8 minutes on a question. And I don't know, हमारे time में, I'm sure it happened with yours also. There were many bouncer questions, right? Something that I've not even heard of, McBride Commission, and some other cases. So I would not suggest leaving those questions outrightly. I would suggest attempt all the questions. 20 questions हैं आपके पास, आप attempt करिए उन्हें, but outrightly bluff मत pull करिए। जैसे मैकब्राइड कमीशन जो क्वेश्चन था, उसमें बेसिकली आई हैड नो आइडिया, मुझे नहीं पता था वो क्या है, बट उसमें कुछ कीवर्ड्स थे कि यूनेस्को की कमेटी थी, एंड व्हाट डू यू थिंक विल बी इंडिया स्टैंड ऑन इट। सो आई जस्ट रोट अबाउट व्हाट यूनेस्को डज. I had no idea what McBride was, so I just wrote what UNESCO does, and then I just wrote another one line that what has been India's stand on cultural issues, because UNESCO deals with all of that. Just 2 lines, and then I left it. So I think I might have got half a mark. Half a mark can create a difference. My marks are the same as rank 50. But then I would advise attempt all the questions. Do not write anything. So don't write McBride can deal with Brew and Bride. That would be very contentious. That would definitely not cut an ice with the examiner. But if you can pick up a keyword which sounds familiar, then I think you should. बट वो पेज भरने के चक्कर में वो मत करना कि जो क्वेश्चन अच्छी तरह से आते हैं उसको तो कम से कम 1 मिनट सोच के थोड़ा वेल स्ट्रक्चर करके, क्योंकि 2000 और क्या बोलते हैं ना की हाइलाइट्स ऑफ योर पेपर। जैसे कि कोई क्वेश्चन है तो अगर आप हैफेजेडली लिख दोगे, बहुत अच्छा तरीके से आता है तब भी हैफेजेडली लिख दोगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया क्या है, तो आप कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दोगे, बट यू नो कि भाई इस क्वेश्चन को अगर मैं 1 मिनट सोच लूँ तो आई कैन राइट इट बेटर, तो दैट विल क्रिएट अ डिफरेंस ऑफ 2-3 मार्क्स। आप कुछ भी रैंडम लिखोगे तो 3 नंबर मिलेगा, थोड़ा सोच लोगे तसल्ली से तो 6 नंबर मिलेगा, तो एटलीस्ट वो मिस्टेक ना। Sir, another question. While attempting a question in main, so is it necessary that you should criticize in a question? Criticize whom? Criticize the government or criticize the policy? Maybe not. Sorry to interrupt, but the question in itself is sometimes asked critically comment. Then you have to be not very harsh words. But as a rule of thumb, as a civil servant, क्योंकि आप गवर्नमेंट सेक्टर में ही जा रहे हो, तो either in your means examination or in interview, look at the brighter side of glass half glass empty. So he meant to say that if there is an issue of GST,
then GST has benefits as well as has some deficiencies. तो डेफिशिएंसी तो यार So we should वो है have ना to- कि you can actually bridge that जो भी प्रॉब्लम है डेफिशिएंसी वाला. If you start with the negative side कि नहीं GST से तो small traders का धंधा ही बंद हो गया, that would like a very cynical वाला चीज. Right, You sir. better be in a क्या बोलते हैं ना NGO में काम करने वाले लोग rather than being in a. We have to end the note on this critical things or हाँ क्रिटिकली अगर आपको क्वेश्चन आता है भाई क्रिटिकली इवैल्यूएट दी GST वाला, तो उसमें यू स्टार्ट विद द पॉजिटिव वाला फर्स्ट, ठीक है. और नेगेटिव वाले में भी इफ यू आर राइटिंग समथिंग देन सजेस्ट अ मेजर कि भाई उसको कैसे ठीक कर सकते हैं. जैसे कुछ इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है, देन यू कैन वेरी वेल राइट कि वी कैन स्ट्रेंथन आवर आईटी फ्रेमवर्क, ठीक है, जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ठीक हो सके. जैसे महात्मा गांधी नरेगा है, तो इट्स लाइक क्या बीटिंग स्टिक हो गया आजकल. मतलब अखबार में देखोगे तो एवरीबडी क्रिटिसाइजेस कि गड्ढा खोदो गड्ढा भरो वाली, बट यू डोंट स्टार्ट लाइक दिस गड्ढा खोदो गड्ढा भरो वाली. इट हैज, अगर आप फील्ड पे जाओगे एक्चुअली गांव में जाओगे, देन यू विल सी कि भाई जिसके पास कुछ नहीं है काम करने को इन लीन सीजन, जहाँ पे एग्रीकल्चर में उसका जमीन खाली पड़ा है, 177 रुपीज, और इट डिपेंड्स वेरीज ऑन स्टेट, 177 और 200 रुपीज मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. देन यू कैन स्टार्ट कि भाई हाँ इसमें डेफिशिएंसीज हैं, कि सस्टेनेबिलिटी नहीं है, अगर आपने जो गड्ढा कल खुदा है वो बारिश में भर जाएगा. देन यू फोकस की हाउ कैन वी क्रिएट ड्यूरेबल एसेट इन दैट. सो दैट वुड बी समथिंग विच विल एड अप टू स्कीम को स्ट्रेंथन करने. आउटराइट रिजेक्ट तो किसी चीज को नहीं कर सकते. आउटराइट रिजेक्ट तो पीपल कैन रिजेक्ट डेमोक्रेसी आल्सो, कि मतलब वो अनपढ़ लोग जो है सेलेक्ट कर लेते हैं गवर्नमेंट. ऐसा थोड़ी कि उसको हमेशा हटा ही. इलेक्शन कमीशन है उसको स्ट्रेंथन करने. I think all of your queries they have been addressed to. So Bhavesh, you please take a seat.